A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about course outline of paper Botany 3rd, that is microbiology and diversity in plants. In this paper there are also two sections. Section 1 is about microbiology, and microbiology, as you know, is the study of microorganisms. In this section, we will discuss about three topics. Number 1, viruses. Number 2, bacteria. And number 3, cyanobacteria. First of all, viruses. In viruses, we will discuss about the general structure of these viruses, what is the biochemical nature of these viruses, इंट्रोडक्शन टू वायरल डिजीज़ हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद एक डिज़ीज़ जो है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ टोबैको मोज़ाइक डिजीज़. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैक्टीरिया. इन बैक्टीरिया जनरल स्ट्रक्चर विल बी डिस्कस्ड ऑफ दिस बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विल बी डिस्कस्ड, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया विल बी डिस्कस्ड. Biological importance will be discussed with special reference to role of bacteria in the rhizosphere and nodulation. Then we will also discuss the transmission of genetic material in bacteria, and there are three methods of genetic transmission in bacteria. Number 1 is conjugation, number 2 is transduction, and number 3 is transformation. Then number 3rd topic is cyanobacteria. Cyanobacteria are also called cyanophyta. In this also general structures will be discussed of these cyanophyta members. What is the importance of cyanophyta, especially with reference to the soil building and nitrogen fixation. And then we will discuss the life cycle of one type of this group, that is nostoc. Then second section of this paper is diversity in plants. In diversity of plants, we will discuss the classification of plant kingdom. As you know that plant kingdom is mainly divided into two groups, cryptogamy and phanerogamy. Now these groups are again divided into main subgroups, and among all these groups we will study the following groups. Number 1 is thallophyta. Number 2 जो है इसमें हम स्टडी करेंगे जो है वो ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम प्लांट किंगडम की जो ग्रुप है थैलोफाइटा, उसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. थैलोफाइटा ग्रुप जो है दैट इज दैट ग्रुप इन विच द प्लांट बॉडी इज अनडिफरेंशिएटेड, एंड दिस ग्रुप इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स. Number 1 the algae and number 2 the fungi. The first of all we will study about the algae. In algae we will discuss the general structure of these algae. इनकी occurrence हम पढ़ेंगे, where these are found, different methods of reproduction found in these algae and their classification. Reproduction जो है mainly 3 types की होती है, vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. तो इसमें हम एल्गी में ओवरऑल जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है उसमें हर टाइप के अंदर कौन कौन से मेथड्स पाए जाते हैं. Among the classification, the different classes which we have to study in the algae group are, number 1 is chlorophyta. Chlorophyta जो है इसको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और इसकी 2 टाइप्स जो है वो हम पढ़ेंगे, वॉल्वॉक्स एंड उडोगोनियम. क्लोरोफाइटा डिवीजन जो है इसका ओवरऑल हम जनरल अकाउंट पढ़ेंगे, इनके जनरल कैरेक्टर्स हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो भी पढ़ेंगे. और इसके अंदर जो टाइप्स हैं वॉल्वॉक्स एंड उडोगोनियम, हर टाइप जो है
जिस तरह वॉलवॉक्स है हमने स्टडी करना है, तो इसको जो है पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे कि ये किस जो है वो फैमिली से बिलोंग करती है, वो फैमिली किस ऑर्डर से बिलोंग करती है, वो ऑर्डर जो है वो किस जो है वो क्लास से बिलोंग करता है, वो क्लास किस डिवीजन से बिलोंग करती है। तो वो क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के बाद फिर हम जो है वो इसके अंदर अक्रेंस इसकी पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर इसकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। फिर इसके बाद इसकी प्लांट बॉडी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका लाइफ साइकिल जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और लाइफ साइकिल के अंदर हम जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स है वो हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये प्लांट जो है वो सर्वाइव करता है, किस तरह से अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। इसी तरह से ऊडोगोनियम को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस ग्रुप जो है दैट इज़ कैरोफाइटा। कैरोफाइटा जो है उसमें भी इसी तरह से जनरल अकाउंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और उसके अंदर भी हम जो है वो एक टाइप पढ़ेंगे कारा। इसका लाइफ साइकिल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो है वो नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज़ ज़ेंथोफाइटा। ज़ेंथोफाइटा को जो है वो येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, और इसमें जो है वो एक टाइप हम पढ़ेंगे वो चेरिया, और इसमें भी ओवरऑल हम टाइप क्लास जो है ज़ेंथोफाइटा इसका जनरल अकाउंट पढ़ेंगे, और इसके सारे जनरल कैरेक्टर जो हैं वो हम स्टडी करेंगे, और डिटेल में जो है वो वुचेरिया टाइप जो है उसको डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास इज़ बेसिलेरियोफाइटा। इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, और इसके अंदर जो है वो एक टाइप हम पढ़ेंगे पिनुलेरिया। पिनुलेरिया जो है उसका लाइफ साइकिल हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसका जनरल स्ट्रक्चर और उसके जो क्लासिफिकेशन, और इसके बाद ओवरऑल बेसिलेरियोफाइटा जो क्लास है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी जो है वो हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट क्लास इज़ फियोफाइटा। फियोफाइटा को जो है वो ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, एंड ब्राउन एल्गी जो है उसमें हम एक टाइप पढ़ेंगे एक्टोकार्पस, और इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, और ओवरऑल फियोफाइटा ब्राउन एल्गी डिवीजन जो है वो इसका जनरल अकाउंट और उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो पढ़ेंगे। देन लास्ट क्लास ऑफ दिस ग्रुप जो है वो रोडोफाइटा है। रोडोफाइटा को रेड एल्गी भी कहा जाता है। रोडोफाइटा का भी जनरल कैरेक्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे, और लाइफ साइकिल जो है वो इसमें जिस टाइप का हम पढ़ेंगे दैट इज़ बेट्रैकोस्पर्मम। अब ये एल्गी ग्रुप कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है थैलोफाइटा का दैट इज़ फंगी। और फंगी जो है ये वो प्लांट्स हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। इनके अंदर इनके अंदर पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से अपनी फूड इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकते। जबकि एल्गी जो है वो उनके अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फंगी ग्रुप जो है इसके अंदर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओवरऑल अकरेंस इसकी पढ़ेंगे, फिर इसके अलावा इसमें रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मेथड्स पाए जाते हैं वो पढ़ेंगे, और इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे। और हमने जो है वो जो इसके अंदर टाइप्स पढ़नी है ओवरऑल जो है वो उसमें इस ग्रुप के अंदर जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे, और स्पेशली मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस के पॉइंट से जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लाइफ साइकिल जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स का, और फिर उसके बाद जो पैथोजेनिक फॉर्म्स हैं फंगी के अंदर, मीन्स के जो डिजीज़ काजिंग फंगी हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, उनको पैथोजेनिक जो है वो फॉर्म्स कहा जाता है। तो इन फंगी में स्पेशली जो है वो स्मट और रस्ट की जो डिजीज़ हैं इनके कंट्रोल मेथड्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये स्मट एंड रस्ट जो है ये वो डिजीज़ हैं जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स जो हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। अब इस ग्रुप के अंदर हमने जो डिफरेंट क्लासेस जो स्टडी करनी है वो 4 क्लासेस हमने पढ़नी है। नंबर 1 इज़ मेस्टिगोमाइकोटीना।
इसमें टाइप जो है वो हम एल्ब्यूको पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो ये थोड़े सिंपल जो है वो ग्रुप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो एस्कोमाइकोटीना है। एस्कोमाइकोटीना, एस्को जो है वो एस्कस से है। एस्कस का मतलब ये है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इस जो है वो ग्रुप के अंदर। तो एस्कोमाइकोटीना जो है वो इस डिवीजन के अंदर हम जो है वो दो टाइप्स पढ़ेंगे, पेनिसिलियम एंड यीस्ट्स। फिर इसके बाद जो है वो हम जो है वो पढ़ेंगे, तीसरी जो इसके अंदर क्लास है वो बेसिडियोमाइकोटीना है। बेसिडियोमाइकोटीना जो है वो ग्रुप, इसके अंदर जो है वो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सैक्लिक जो स्ट्रक्चर है उसके जो है वो ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उसको उस सैक्लिक स्ट्रक्चर को जो है वो हम बेसिडियम कहते हैं। तो इसी वजह से इस डिवीजन का नाम बेसिडियोमाइकोटीना है। तो इसके अंदर जो है वो हम 3 टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहली टाइप जो है वो अस्टिलैगो है, दूसरी टाइप जो है वो पक्सिनिया है, और तीसरी टाइप जो है वो अगैरिकस है। अगैरिकस जो है ये टाइप, इसके अंदर कॉमन जो है वो मशरूम्स पाई जाती हैं डिफरेंट टाइप्स की। और उसके बाद जो पक्सिनिया है, ये जो ग्रुप है इसका, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, ये जो टाइप है इसके जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ये क्रॉप प्लांट्स जो है वो उनके ऊपर एक डिजीज़ काज करते हैं जिसको रस्ट कहते हैं। और अस्टिलैगो जो है वो फंगी के उन ऑर्गेनिजम्स का जो है वो टाइप है जो डिजीज़ काज करते हैं प्लांट्स के ऊपर, उस डिजीज़ को स्मट कहा जाता है। तो स्मट और रस्ट जो हैं ये दो डिजीज़ेस जो हैं काजिंग ये ऑर्गेनिजम्स हैं, अस्टिलैगो एंड पक्सिनिया। तो इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे, और ये जो डिजीज़ काज करते हैं इनकी डिजीज़ को कंट्रोल करने के मेथड्स जो हैं वो भी हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो चौथी फोर्थ जो क्लास है इसके अंदर जो हमने स्टडी करनी है, दैट इज़ ड्यूटेरोमाइकोटीना। और ड्यूटेरोमाइकोटीना जो है वो इनको फंगी इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। क्यों इनको इम्परफेक्टाई कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो है वो, इस ग्रुप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, नहीं पाई जाती है, आइडेंटिफाई नहीं है अभी तक। इसके स्टेप्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन वो स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपर रेगुलर टाइम और प्लेस पर जो है वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको फंगी इम्परफेक्टाई कहा जाता है। तो इसके अंदर जो है वो हम एक टाइप पढ़ेंगे, और वो टाइप है अल्टरनेरिया। देन हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है लाइकन्स। लाइकन्स क्या है? ये वो ग्रुप है जो कि 2 डिफरेंट प्लांट्स, एल्गी एंड फंगी जो है वो इसकी एसोसिएशन से डेवलप होते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर हमने कोई टाइप जो है वो स्टडी नहीं करनी है, इसमें जस्ट हमने जनरल अकाउंट इसका जो है वो डिस्कस करना है डिटेल के साथ, कि इसमें जो है वो जनरल स्ट्रक्चर क्या है इनका, what are the types of lichen, what is the internal structure of the lichens, and what is the life cycle of the lichens. Then next जो ग्रुप है जो हमने स्टडी करना है प्लांट किंगडम में, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो इनको मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स भी कहा जाता है, इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स भी जो है वो कहा जाता है। और इनमें जो प्लांट बॉडी है, गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो डोमिनेंट होती है। आपने पढ़ा होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये प्लांट, किसी भी प्लांट के अंदर जो है वो लाइफ साइकिल के अंदर जो है 2 स्टेजेस आती हैं, एक गैमीट प्रोड्यूसिंग गेमिटोफाइट और दूसरी स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट। तो इसमें जो है वो अल्टरनेट करती हैं दोनों जनरेशन उसके लाइफ साइकिल के दरमियान। तो इसमें ब्रायोफाइट जो है वो इनके अंदर गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो डोमिनेंट होती है। इनको जो है वो एट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है, मीन्स के ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो है वो इसको थैलोफाइट की निस्बत जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इनटू स्टेम, रूट एंड लीफ लाइक पार्ट्स।
लेकिन वो ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स नहीं होते क्योंकि उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम अभी जो है प्रेजेंट नहीं होता। इसमें ब्रायोफाइटा ग्रुप जो है इसके अंदर भी हम जनरल काउंट पढ़ेंगे ओवरऑल, फिर इसमें रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस ग्रुप के अंदर हमने 2 टाइप्स जो है वो डिटेल में पढ़नी है। नंबर 1 जो है वो एंथोसीरोस और नंबर 2 जो है वो फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइट के जो कुछ ग्रुप्स हैं उसमें स्पेशली जो है ये एंथोसीरोस, इसके अंदर जो है वो इसकी प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो कुछ साइनोफाइटा के जो मेंबर्स हैं वो एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं और इसके अंदर जो है वो रहते हैं, मतलब सिम्बियोटिक एसोसिएशन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो डेवलप कर लेते हैं और ये इस तरह से रहते हैं। ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स हैं इनमें जो है वो लाइफ साइकिल जो है एज कम्पेयर टू एल्गी एंड फंजाई जो है मोर लॉन्ग होता है और वो डिटेल में जो है वो हम इनके जनरल कैरेक्टर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम विच we will discuss and study in detail is the Pteridophyta. Pteridophyta is the group of plants which are the first land plants, and these are also known as vascular cryptogams, मीन्स के इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन सिंपल टाइप का जो है वेस्कुलर सिस्टम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज इनके अंदर डेवलप होते हैं। और इन प्लांट्स के इस ग्रुप के जो है वो लाइफ साइकिल में जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो डोमिनेंट होती है। ट्रीडोफाइटा ग्रुप का भी जो है वो हम जनरल अकाउंट में उसके सारे जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे हम, इसका लाइफ साइकिल जो है वो हम पढ़ेंगे और इसकी भी जो है वो जो क्लासेस हमने स्टडी करनी है अपने कोर्स के दौरान वो जो है नंबर 1 है साइलोप्सिडा, जिसकी टाइप जो है वो हम पढ़ेंगे साइलोटम, और इसमें जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो ब्रायोफाइट्स की तरह जो है वो लॉन्ग होता है और उसको डिटेल से जो है हम स्टडी करेंगे। इसमें भी इसी तरह से जो है वो पहली टाइप्स की तरह जो है वो क्लासिफिकेशन, इसकी अकरेंस, प्लांट बॉडी और इसका लाइफ साइकिल जो है वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर जो इसकी क्लास है वो हमने स्टडी करनी है ट्रीडोफाइटा ग्रुप की, वो लाइकोप्सिडा है और लाइकोप्सिडा में जो टाइप हम स्टडी करेंगे वो स्लेजिनेला है। थर्ड जो क्लास है वो स्फिनोप्सिडा है जो हम पढ़ेंगे और इसकी जो टाइप है वो इक्विजिटम हमने डिटेल के साथ स्टडी करनी है। फिर फोर्थ जो क्लास है वो टिरोप्सिडा है और टिरोप्सिडा के अंदर जो है वो फिलिसिनी जो सब क्लास है उसको हम पढ़ेंगे और इसके अंदर इनको फर्न्स भी कहा जाता है। दीज फर्न्स जो हैं फिलिसिनी क्लास जो है इट इज़ मोर complex and advanced as compared to the first 3 divisions साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा एंड स्फिनोप्सिडा। तो इसके अंदर जो है वो हमने एक टाइप स्टडी करनी है इडियंटम, उसका लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दैट टाइप। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का जो हमने पढ़ना है दैट इज the gymnosperms. Gymno means naked, sperma means seed. Naked seeded plants, जो प्लांट्स हैं जिनके स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स के ऊपर सीड जो है वो नेकेड प्रोड्यूस होते हैं, कोई कवरिंग जो है वो उनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स के अंदर भी जो है वो ट्रीडोफाइट्स की तरह स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो डोमिनेंट होती है और इनमें भी जो है वो कुछ प्लांट्स हैं कि जिनकी रूट्स जो हैं उनके अंदर साइनोफाइटा के कुछ मेंबर्स जो हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो साइकस का प्लांट है इसके अंदर इसके रूट्स में जो है वो
डेवलप हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं साइनोफाइटा के मेंबर्स, और वहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। उस मेंबर को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और इन टर्न ये वहाँ से अपनी फूड लेते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर जो है वो हम पहले ग्रुप्स की तरह जो है वो जनरल अकाउंट पढ़ेंगे, जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो लाइफ साइकिल भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स के पाए जाते हैं, और एफिनिटीज़ ऑफ दिस ग्रुप जो है वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें जो हमने 3 टाइप्स स्टडी करनी है, वो टाइप्स जो हैं उनमें नंबर 1 जो है वो साइकस है, नंबर 2 जो है वो पाइनस है, और नंबर 3 जो है वो इफेड्रा है। इसमें पाइनस के ट्रीज़ जो है उनको आप कॉमनली जानते होंगे। ये आप हिली एरियाज़ की तरफ जाएं तो वहाँ पर पाइन ट्रीज़, पाइन फॉरेस्ट जो है वो आपको नज़र आते हैं, बहुत सारे टीवी में आपने देखे होंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के अंदर। तो इनमें नीडल लाइक लीव्स जो है वो इनके होते हैं, और उनके ऊपर कोन्स जो हैं वो लगती हैं, कोन्स प्रोड्यूस होती हैं, मतलब इनके अंदर प्रॉपर फ्लावर जो है वो नहीं प्रोड्यूस होते हैं। इसमें कोन्स जो है वो कोन बेयरिंग प्लांट्स हैं ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है, 7th ग्रुप जो हमने इसमें स्टडी करना है प्लांट किंगडम के अंदर, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मीन्स सैक, स्पर्मा मीन्स सीड्स, मीन्स सीड्स आर एनक्लोज्ड इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो जिस तरह जो फ्रूट्स आपने देखे होंगे कि फ्रूट्स जो हैं वो सीड्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सीड्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म्स की तरह जो है वो नेकेड नहीं होते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं इनके अंदर भी स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स, और प्रेजेंट वेजिटेशन जो है वो इनमें बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इस ग्रुप में जो है वो हमने कोई टाइप नहीं पढ़नी है, जस्ट हमने इसका जो है वो लाइफ साइकिल स्टडी करना है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्म की जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं ये आप अपने 3rd ईयर के पेपर 1 में जो है वो 14-15 फैमिलीज़ जो हैं वो डिटेल के साथ उनके जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इस पेपर में अब हम जस्ट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये तो था हमारा पेपर का जो है वो सिलेबस आउटलाइन। इसको हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद अब हम आते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। प्रैक्टिकल्स आपके जिस तरह 3rd ईयर में आपने 2 पेपर पढ़े थे, बॉटनी 1 एंड बॉटनी 2, तो प्रैक्टिकल वर्क दोनों पेपर्स का जो है वो कंबाइन था, मतलब एक ही बुक के अंदर आपने इकोलॉजी के प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किए थे और इकट्ठे ही, और दूसरे जो है वो पोर्शन के पेपर 1 के भी आपने कंबाइन किए थे। तो यहाँ पर भी पेपर 3rd एंड 4th के जो प्रैक्टिकल्स हैं कंबाइन जो है वो आप करेंगे, मतलब डिफरेंट पेपर्स होंगे हर पोर्शन से, लेकिन उनको एक ही जो नोटबुक है आपकी उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म उसमें जो है वो लिखे होंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम टर्न बाय टर्न जो है वो परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल थियरी जो है वो उसके अंदर जो डिफरेंट टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर करने के लिए जो है वो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करते हैं, और उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट्स जो है वो टेस्टिंग के थ्रू हम जो है वो कंफर्म करते हैं और उनको जो है वो देखते हैं। तो प्रैक्टिकल की जो लिस्ट है हमारे पास, इसमें तकरीबन हमारे पास जो है वो 15-16 जो है वो प्रैक्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है उसमें स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो आपको यूज़ करनी आती है। अब इसमें जो है वो हम उसको यूज़ करते हुए सेल का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे, और उसमें स्पेशली जो है वो 3 टाइप्स के सेल जो है वो आप स्टडी करते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर प्रैक्टिकल नेक्स्ट जो है उसमें हम फिक्सेशन एंड स्टेनिंग ऑफ प्लांट मटेरियल करते हैं, कि आपको प्लांट मटेरियल कोई भी दिया जाता है, वो स्टेम, लीफ या रूट का हो सकता है, तो उसका आपने सेक्शन कटिंग करनी है, और उस सेक्शंस को जो है वो आपने स्टेनिंग करके जो है वो फिक्स करना है, और स्टेनिंग करके आपने स्लाइड बना के जो है वो देखनी होती है।
तो उसमें जो है वो डिफरेंट स्टेप्स जो है वो आपको स्टेनिंग आपने पहले भी की है, तो अब भी जो है वो उसी मेथड से आपने करनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है बैक्टीरियल स्टेनिंग का, जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हम डिटेक्ट करेंगे। फिर क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी एंड कैरियोटाइप एनालिसिस का प्रैक्टिकल है। फिर आपने प्रैक्टिकल करना है माइटोसिस एंड मियोसिस की स्टडी, और उसमें उसकी जो स्टेजेस हैं उनको स्टडी करना है। और इसके लिए हम प्लांट के जो है वो मटेरियल चूज़ करते हैं जहाँ पर माइटोसिस हो रही होती है और मियोसिस होती है, तो उन पार्ट्स को लेके हम सेक्शन काट के तो उसमें जो है वो डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एक और प्रैक्टिकल है जिसमें जो है वो हम रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो उनको डिटेक्ट करते हैं, यानी ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो गिवन शुगर है हमें जो दी गई है वो रिड्यूसिंग है या जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। इसमें 4 शुगर्स जो है वो हमें दी जाएंगी। नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 माल्टोज, नंबर 3 फ्रुक्टोज एंड नंबर 4 सुक्रोज। नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो केमिकल टेस्ट है सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंफर्म करने के लिए। उसमें 4 सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो उनको हम जो है वो डिटेक्ट करेंगे, उनके लिए टेस्ट करेंगे। स्टार्च है, सेलुलोज है, लिग्निन है एंड प्रोटीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्पेसिफिक नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें हम इनके जो है मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल है मेजरमेंट ऑफ लीफ वाटर पोटेंशियल बाय डाई मेथड। इसमें जो सेल बायोलॉजी वाले पोर्शन में आप जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें वाटर पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिकल में हम लीफ का वाटर पोटेंशियल जो है वो मेजर करेंगे डाई मेथड को यूज़ करते हुए। फिर एक और प्रैक्टिकल है जिसमें हमने जो है वो ये डिटरमिन करना है कि बीट रूट सेल जो है वो किस टेम्परेचर पर जो है वो अपनी सेमी परमेबिलिटी जो है वो लूज़ करते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर की रेंजेस जो है उनके अंदर हम रखेंगे उनके पार्ट्स को, और फिर हम जो है देखेंगे किस पार्ट में जो है वो किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो अपनी सेमी परमेबिलिटी जो है वो लूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय पोटोमीटर, यानी पोटोमीटर जो है वो उसको यूज़ करके हम ट्रांसपिरेशन के रेट जो है वो उसको हम देखेंगे, और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो उसको देखेंगे कि लाइट के अंदर, रूम के अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, और फैन के अंदर जो है या ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है उस पर क्या इफेक्ट होता है। फिर इसके बाद हम एक और प्रैक्टिकल करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम लीव्स एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट पिगमेंट्स ऑन पेपर क्रोमेटोग्राम। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आपने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करेंगे कि क्लोरोफिल जो है उसको लीव्स से एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे लीव से, और उसके बाद जो है वो फिर उसके अंदर कौन कौन से मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करके जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह इसमें मेनली जो है वो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, जेंथोफिल्स हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, तो ये जो है वो सारे हम इसमें जो है वो देखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू कलर्ड लाइट ऑन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय अ फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट। कि एक प्लांट लेंगे जिसके अंदर नॉर्मल जो है फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, और उसके अंदर हम देखेंगे कि उस फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन की जो अमाउंट प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट कलर्स की जो लाइट है उसके अंदर हम उस प्लांट को रख के देखेंगे।
उसके लिए हम उस प्लांट को जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स के पेपर से जो है वो कवर कर देंगे। तो ग्रीन पेपर से कवर्ड वाला जो प्लांट है उसके अंदर जो है वो ग्रीन लाइट ज़्यादा जा रही होगी, रेड कलर वाले पेपर से जो है वो रेड कलर की लाइट ज़्यादा जा रही होगी, ब्लू कलर वाले से ब्लू कलर की लाइट। तो अब हम देखेंगे कि इस तीनों कलर्स की लाइट जो है वो उसका ऑक्सीजन की एवोल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसमें ज़्यादा होती है ऑक्सीजन इवॉल्व और किसमें कम इवॉल्व होती है। फिर इसके बाद जो है वो एक प्रैक्टिकल है जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसका जो है वो जनरल एस्टिमेट जो है वो लगाना है कि कितनी प्रोड्यूस होती है, और ये हम रिंकलर मेथड को जो है वो यूज़ करते हुए चेक करेंगे। फिर इसके बाद लास्ट जो प्रैक्टिकल है इसमें स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन है, और इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे कि 3 डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, पी जिसको मटर कहते हैं, जिया जिसको मकई कहते हैं, और ग्रैम जिसको चने भी कहते हैं, इनके जो है वो सीड्स लेंगे हम और इनको 3 डिफरेंट पॉट्स के अंदर जो है वो ग्रो करेंगे। ये एक पॉट अगर बड़ा है तो एक में भी ग्रो किए जा सकते हैं, लेकिन ये कि आपको पता चल जाए कि वो सेपरेशन इसके अंदर ये वाले सीड ग्रो किए थे, इसके अंदर ये वाले और इसके अंदर ये वाले, तो इसलिए 3 डिफरेंट पॉट्स जो है वो यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जब सीड जर्मिनेट करना शुरू करेंगे तो उसके बाद जो है वो हम कुछ दिनों के बाद देखेंगे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इन सीड्स को निकालेंगे एंड देन वी विल ऑब्जर्व द डिफरेंट जोन्स ऑफ ग्रोथ इन दीज सीड्स, कि किस किस तरह से कौन कौन से जो है वो जोन्स हैं रूट के अंदर, रूट जो है वो कहाँ से डेवलप हो रही है, स्टेम कहाँ से डेवलप हो रहा है। तो ये सारे जो हैं वो हम इस सीड वाले प्रैक्टिकल जो है उसके अंदर सीड जर्मिनेशन की जो स्टेजेस हैं डिफरेंट वो हम स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट योर पेपर, थेरी पेपर एंड प्रैक्टिकल वर्क। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।